Hello, bachcho. Now again we were just talking about the chapter of moment, chapter number 6, weathering the storm in Erasama. Okay, in which I told you that one boy, Prasant, was just going to Erasama to meet with his friend, and what happened there I was just telling you. So we'll continue tomorrow from the paragraph on page number 38. It is all just given. The crazed destruction wrought, wrought means produced, wrought means produced, produced means निकला, बना. क्या चीज बना? That by the cyclone, उस साइक्लोन की वजह से क्या क्या चीजें बन रही थी? The surge of the ocean continued for the next 36 hours. 36 hours तक continuous ये सारी चीजें हो रही थी. All the wind speeds had reduced somewhat by the next morning to escape the waters rising in the house. Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. Finally, what happened? उसका जो friend था and Prashant as well as they both were on the roof of the house, and here is means no help was there. Even they were not able to sit in the room only. क्यों? रूम में ही नहीं रुक सकते थे. Why? Because already I told you कि the water was deep neck तक उस water आ चुका था, and it was the very difficult and डिफिकल्ट टू सर्वाइवल, है ना. ये बहुत डिफिकल्ट हो गया था सर्वाइव करना. सो दे डिसाइडेड टू गो ऑन द रूफ टॉप. फाइनली वहां पे वो लोग रिफ्यूज ही कर रहे थे. मीन्स रिफ्यूज मीन्स शेल्टर लेना. Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpses of devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. A ragging, deadly brown sheet of the water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement houses still stood in a few places. अभी भी क्या हुआ कि सारे houses बहुत storm में सारे के सारे shaken हो चुके थे, सब destroy हो चुके थे, and अभी केवल cemented जो था and brick के through जो बना हुआ था, only that house was standing for a while कह सकते हो आप, and ultimately उसे भी spoil होना है, वो भी shaken होना ही होना है. Is that clear? Two coconut here it is just means telling you two coconut trees had fallen on the roof of their house, and finally क्या हुआ, क्योंकि वो लोग roof पे थे, and I told you कि it is the area of coastal area. So coastal areas में ऐसा होता है कि वहाँ पे कोकोनट्स आपको easily provide होते हैं. कोकोनट्स all over पूरे जब भी आप किसी भी प्लेस पे जाएंगे आपको कोकोनट्स मिलेंगे. So coconuts are easily found in that coastal areas. So one coastal, because मैंने already बताया कि all the trees were uprooted. So सारे trees uprooted हो चुके थे. That's why एक tree uprooted होके came on the roof of Prashant and his friend. ठीक है, वहां पे आ गया, एंड उनको ये लग रहा था दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और उनको लग रहा था कि शायद ये एक ब्लेसिंग हो, ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड, so that they can survive. मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि that everything was devastation. आपको मैंने यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी बताया कि what is the meaning of devastation. Devastation means spoil होना. ओके, सारी चीजें devastation. I told you devastation means destroy होना. तो everything was destroyed because water बहुत ज्यादा आ चुका था, and अभी कुछ भी नहीं था to have, कुछ खाने के लिए, to drink, कुछ पीने के लिए कुछ भी नहीं था. सो अभी क्या था, वो कोकोनट जस्ट लाइक अ ब्लेसिंग फॉर देम. सो यहाँ पे देखिए इनकी स्टार्विंग, कुछ दिनों तक बिना स्टार्विंग वो रह सकते हैं कोकोनट को लेके, कोकोनट को खाके. फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत सैट हडल्ड विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑफ द रूफटॉप. रूफटॉप पे 2 दिन कॉन्टिन्यूअस उन लोगों ने स्पेंड किया. दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेंसेंट. आई टोल्ड यू इंसेंसेंट, आई टोल्ड यू दिस सी. इंसेंसेंट मीन्स अभी भी, अनचीजिंग मीन्स नहीं रुकने वाली, कॉन्टिन्यूअल, अभी भी कॉन्टिन्यूअल कंडीशन वैसी ही दिख रही थी. वो लोग फ्रोज हो गए थे बिकॉज ऑफ द कोल्ड, और ऑलरेडी आपको पता है रूफ टॉप पे होंगे तो वो ऑल्दो दे वर सर्वाइविंग, वो सर्वाइव तो कर रहे होंगे, बट वो लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा रेन में होने की वजह से उनको शिवरिंग हो रही होगी, कोल्ड हो रहा होगा, और बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा कि कैसे हम इस चीज से ओवरकम करें.
तो दैट्स वाई ये टाइटल दिया ना, वेदरिंग, कैसे वो लोग अपने आप को ओवरकम कहते हैं फ्रॉम एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से कैसे वो लोग ओवरकम करें, इसकी ही स्टोरी हम लोगों को इसमें पढ़नी है। और वो डिफिकल्ट सिचुएशन क्या थी, स्टॉर्म की थी, और किस एरिया में हुई, इरासमा में हुई, या अरसमा, आपको बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन में आपको अरसमा भी मिलेगा, सो इट डिपेंड्स ऑन यू, अरसमा यू मैन से एंड इरासमा यू मैन से एज यू विश। ओके बेटा, तो यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, सर्वाइव्ड हो गई थी, वॉज ही टू बी bereaved, अच्छा bereaved once again, यहाँ पे उसके माइंड में लग रहा था अगेन मैं bereaved हो जाऊंगा, bereaved, what is the meaning of bereaved, I am just writing here bereaved, on line number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 from the last you will count, bereaved is written, so it is the meaning of आप हिंदी में कह सकते हो the people who जिसके relatives are died, किसी भी आप ऐसे bereaved people उन लोगों को कहते हैं आप, इसकी मीनिंग यही, हिंदी में शोकाकुल कह सकते हो, the people, so the people whose relatives are died, हिंदी में आप कह सकते हो शोकाकुल। ओके, शोकाकुल आप कह सकते हो हिंदी में, कि शोकाकुल व्यक्ति कह सकते हो आप, शोकाकुल व्यक्ति, कि जिसका ऑलरेडी वो शोकाकुल, क्यों शोका bereaved ऑलरेडी था, बिकॉज आई टोल्ड यू कि हिज मदर वॉज डेड, प्रशांत की जो मदर थी वो ऑलरेडी डेड हो चुकी थी बिफोर 7 years ago, सो अभी वहां पे उसको ये फीलिंग आ रही कि दैट मैं फिर से bereaved हो जाऊंगा, क्यों, क्योंकि उसके फादर मदर ऑलरेडी डेड हो चुकी थी, एंड फादर जो भी हैं वो भी उससे दूर हो जाएंगे, तो उसके माइंड में ये चीज आती है कि मैं फिर से bereaved हो जाऊंगा। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, 2 दिन का टाइम ना, it was just appearing कि it was just going on 2 years, 2 दिन का समय लग रहा हो, 2 दिन का टाइम, it becomes 2 years. The rain ceased, the rain water slowly began to recede. Prashant was determined to seek out his family without further delay. Finally, जब रेन स्टॉप होती है 2 दिन के बाद, उसने सोचा कि मैं अब क्या करूंगा, मैं सबसे पहले अपने फैमिली को सर्च आउट करूंगा, उसको ढूंढूंगा बिना किसी डिले के, एंड बट द सिचुएशन वाज स्टिल डेंजरस, लेकिन अभी सिचुएशन, रेन वाज स्टॉप, ऑल्दो द रेन वाज स्टॉप, बट द सिचुएशन ऑफ ग्लूमी, जो ग्लूमी सिचुएशन था, क्राइम की, बहुत सारी क्राइम हो रही थी, यहाँ वहाँ से स्क्रीमिंग हो रही थी, सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल थी, नेक डीप तक वाटर था, ये सारी चीजें अभी भी वहां पे अवेलेबल थी, ऑल्दो द रेन वॉज सीज्ड, सीज्ड मीन्स रुकना, रुक गई थी, बट फिर भी उसने ही डिसाइडेड टू मूव अहेड, ठीक है, उसने डिसाइड किया कि मुझे आगे जाना पड़ेगा, गो अहेड कह सकते हो। ही equipped मीन्स ड्रेस्ड, he equipped means dressed, मीन्स पहना, उसने अपने जो भी उस टाइम में कपड़े थे, ड्रेस्ड का मतलब कि आपको ही टोल्ड यू कि ऑलरेडी सारी चीजें स्पॉइल हो चुकी थी, डिवास्टेशन हो चुका था, सो कोई ड्रेस, स्पेशल ड्रेस नहीं थी जिसकी वजह से वो रेडी होता कि मुझे अब वाटर में जाना है और मुझे रेनकोट पहनना है, ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो रेनकोट पहन के जाएगा एंड हैविंग एन अम्ब्रेला, ही विल ड्रेस अप विद द रेनकोट एंड ही विल हैव एन अम्ब्रेला, और बहुत सारे शूज बूट होंगे जो उसको प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम द वाटर, ऐसा कुछ भी नहीं था, इट वॉज नॉट ऑल अबाउट उसकी ड्रेसिंग कैसी थी, लेट्स सी कि क्या उसकी ड्रेसिंग थी, तो ड्रेसिंग थी स्टर्डी स्टिक, स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग, जो इजीली बेंट नहीं होती है, उसको कहते हैं स्टर्डी, जिसको कि स्ट्रॉन्ग कह सकते हो आप, स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग सी, उसने एक स्टिक ली, इसके स्टिक का यूज क्या था, स्टिक का यूज करके ही कैन नो, है ना, वो जान सके कि वेयर इज द डिच, कहाँ पे डिच है, फिर वो यहाँ से चेक कर सके कि यहाँ पे तो ऐसा नहीं है आई मे फॉल,
मैं गिर जाऊं। सो उसने, उसकी ड्रेसिंग यही थी कि उसने एक स्टिक लिया एंड उसने स्टार्ट किया 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन आई टोल्ड यू कि इट इज अ जर्नी। एक्सपेडिशन आपको एक वर्ड मिलेगा, एक्सपेडिशन मीन्स जस्ट अ जर्नी। एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन मीन्स जर्नी, अ शॉर्ट जर्नी। सो जर्नी कौन सी थी, आई टोल्ड यू कि जर्नी थी एक्सपेडिशन कौन सी, 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर्स की जर्नी उसको करनी थी। ये जर्नी उसी को करनी थी बिकॉज कोई नहीं था। बैक टू द विलेज थ्रू द स्वॉलन फ्लड वाटर्स। अभी ये फ्लड का जो एटमॉस्फेयर था उस फ्लड में ही उसको एंटर करना था एंड उसको इस जर्नी को कंप्लीट करना था। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। और ऐसी जर्नी थी कि जो अनफॉरगेटेबल जर्नी थी, उसको वो कभी भूलता नहीं। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज, लगातार उसने अपने स्टिक का यूज किया ताकि वो रोड को लोकेट कर सके, डिचेस को लोकेट कर सके, ताकि वो बहुत बड़ी सी ड्रेनेज में ना वो स्टक हो जाए, फंस जाए। एंड टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो। वो देख रहा था कि वाटर कहाँ कहाँ पे ज़्यादा शैलो है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। इस सब की चेकिंग के लिए उसने अपने आप को ड्रेसअप किया, ड्रेसअप विद द स्टिक, ठीक है। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, कभी कभी ये वेस्ट तक था, यहाँ कमर, वेस्ट, यू रिमेंबर, वेस्ट। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, तो जब वेस्ट तक था तो बहुत धीरे धीरे से वो मूव ऑन कर रहा था। एंड आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज। उसने देखा कि उसके दो अंकल के दो और भी बच्चे उसको रास्ते में मिले, वो भी लोग रिटर्न कर रहे थे विलेज से। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर। फाइनली उन्होंने सोचा कि प्रशांत एंड इंक्लूडिंग 2 more boys दे विल मूव अहेड ऑल टुगेदर, सब लोग साथ में करेंगे। ओके बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, गुड बाय।